Hello my dear children, welcome back to Let's Learn. This is Shivani, your English teacher. Students, in class 8th, we had already completed O Captain, My Captain, and in today's video, we will be discussing question answer of this chapter. As I have told you that Walt Whitman wrote this beautiful poem to give a tribute to Abraham Lincoln, who was the 16th President of USA. In 1865, one more incident happened in USA, which was Civil War. And after Civil War, assassination of Abraham Lincoln took place in USA. Walt Whitman was so impressed by this personality that he decided to give tribute to him in the form of a poem. So this poem, Walt Whitman has a poetry collection which was named as Leaves of Grass, और उस कलेक्शन में ये पोएम जो थी वो लिखी गई थी. ये काफ़ी सक्सेसफुल पोएम है. हम पोएम को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ पे भी ज़रूरत हमें लगेगी कि हमें पोएम को रिकॉल करना चाहिए, वी विल once again recall the poem. So yes, let's start the question answer of this chapter. Question number 1. Answer these questions with reference to context. So the first one is, now there are different statements, different lines from the poem. We have to read the lines and we have to give answers of these questions according to these lines. Okay. For you, the shore a crowding, for you, they call. So these lines are in the second stanza of poem. In the second stanza, it's the third line. Okay, for you the shore crowding, for you they call, the swaying omas, their eager faces turning. Now the question is, who is you here? First of all, let's discuss what the poet is saying in these lines. In these lines, poet is saying that the crowd which are gathered at the shore of the sea, they are gathered for you. The people who are at the shore, they are calling for you. ठीक है, जो लोग खड़े हैं शोर के पास, वो आपके लिए खड़े हैं. जो शोर इकट्ठा है, शोर पे लोग इकट्ठा हैं, वो आपको आवाज़ें दे रहे हैं, वो आपके लिए हैं. सो द क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है कि आप किसके लिए लिखा गया है. It's but obvious, you refers to the captain. We need not to mention Abraham Lincoln's name here, because in the poem we are only talking about captain. Since this poem is a metaphor, okay, तो हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि captain is referred for Abraham Lincoln until it is asked. Question number 2. Where are they? ये जो लोग हैं ये कहाँ पर खड़े हैं? They are at the shore of the sea. फर्स्ट लाइन में ही क्लियर कर दिया गया है कि शोर क्राउडिंग मीन्स द पीपल आर गैदर्ड एट द शोर, सो दे आर एट द शोर ऑफ द सी. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज देयर अ क्राउड? देयर इज अ क्राउड बिकॉज दे वांट टू वेलकम देयर कैप्टन. उनका जो कैप्टन है उसने अपनी जो वॉयेज है, जो जर्नी है, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है. सारे जो रैक्स हैं उनको विथस्टूड कर लिया है, सारी मुसीबतों का सामना कर लिया है, और उनका जो कैप्टन है वो अब वापस आ रहा है. सो ये सारे जो लोग हैं वो क्राउड बना के खड़े हैं जस्ट टू वेलकम देयर कैप्टन एंड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री टुगेदर. नाउ दिस इज द सेकेंड वन. Exult, O shores and rings, O bills. Exult, O shores and rings, O bills. Question number 1. When and why does the speaker say this? Now, this particular line is at the climax of the poem. It's the fourth last line of the poem. ये poem की fourth last line है, ठीक है? ये last paragraph की last 4 line है. When and why does the speaker say this? The speaker says this when
they are returning home because they got victory in civil war. ये स्पीकर ने तब कहा जब वो अपनी जर्नी से वापस आ रहे थे सिविल वॉर को जीत कर, और इन्हीं के लिए जो लोग थे वो शोर के पास खड़े थे क्राउड बनाकर, ठीक है, वो बेल्स रिंग कर रहे थे, वो आवाज़ें दे रहे थे, देवर कॉलिंग, देवर फ्लाइंग द फ्लैग्स, वो अपने जो फ्लैग्स थे उनको फहरा रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट बेल्स आर बीइंग रेफर्ड टू हियर? किस चीज़ की बेल के बारे में बात हो रही है? द बेल्स ऑफ विक्ट्री आर बीइंग रेफर्ड हियर. सो जो बेल है वो कौन सी बेल है? विक्ट्री की बेल है. पीपल आर नॉट जस्ट ringing the bell like that. They are ringing the bell because they have a specific reason. And what was that reason? That they got victory in the civil war. So the bells of victory are referred here. What has happened on the deck? अब एक बात है जो बार बार पोएम में कही गई है. क्या बात है वो? That fallen, cold and dead. जो कैप्टन है उसके लिए बार बार पोएम में ये लाइन यूज़ की गई है. अराउंड 3 टाइम्स ये कहा गया है कि फॉलन कोल्ड एंड डेड, फॉलन कोल्ड एंड डेड, ठीक है. और उसके जस्ट पहले एक लाइन है, वेयर ऑन द डेक ऑफ माई कैप्टन लाइज. सो जो डेक है शिप की उस पर क्या है, क्या हो गया है? सो द डेड बॉडी ऑफ द कैप्टन हैज़ लेन ऑन द डेक ऑफ द शिप. जो कैप्टन है उसकी जो डेड बॉडी है वो शिप की डेक पर पड़ी हुई है, फॉलन एंड कोल्ड. Next is answer these questions. Brief questions are there. Question number 1, describe the mixed feelings expressed in first stanza. So first stanza एक बार हम लोग देख लेते हैं कि है क्या. Let me just read out the first stanza for you all. Oh captain, my captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack, the prize we sought is won. The port is near, the bell I hear, the people are exulting, while follow eyes the steady nail, the vessel grim and daring. Now इन 4 लाइन में पोएट जो है, स्पीकर जो है, ही इज़ वेरी हैप्पी. क्यों खुश है? क्योंकि उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गई है सक्सेसफुली. अब बात की 4 लाइन देखते हैं. बट ओ हार्ट हार्ट हार्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, वेयर ऑन द डेक ऑफ माई कैप्टन लाइज, फॉलन कोल्ड एंड डेड. अब ये जो लास्ट की 4 लाइन है इसमें जो स्पीकर है वो काफ़ी दुखी लग रहा है. ही इज़ लैमेंटिंग. क्यों लैमेंट कर रहा है? क्योंकि उसका जो कैप्टन है वो ख़त्म हो चुका है, ही इज़ डेड. ओके, तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें फीलिंग्स जो है वो बहुत मिक्स्ड है, ठीक है. एक तरफ वो बहुत खुश है क्योंकि वो जीत चुका है, और दूसरी तरफ वो बहुत दुखी है, बहुत अपसेट है क्योंकि उसने अपने कैप्टन को खो दिया है. सो द आंसर इज इन स्टैंजा 1, द स्पीकर शोज हिज हैप्पीनेस ऑन द विक्ट्री ऑफ सिविल वॉर इन USA. एट द सेम टाइम ही लैमेंट्स ओवर द डेथ ऑफ हिज कैप्टन अब्राहम लिंकन. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. क्या मिक्स्ड फीलिंग है? On one hand, he's very happy because he got a victory in civil war, and at the same time, on the second hand, he is lamenting over the death of his Captain Lincoln. Question number 2, what does the speaker want the captain to hear, see in stanza 2? Question आपका ये है कि स्पीकर जो है वो कैप्टन को क्या दिखाना और सुनाना चाहता है सेकेंड स्टैंजा में. पहले हम पोएम देख लेते हैं. ओ कैप्टन, माय कैप्टन, राइज अप एंड हियर द बेल्स. हियर द बेल्स मतलब बेल्स की आवाज़ों को सुनो. राइज अप, फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, फॉर यू द बुगल ट्रिल्स, फॉर यू द bucket and ribbon threads, for you the shore a crowding, for you they call the swaying mass, the eager faces turning. ठीक है. अब सेकेंड स्टैंजा में वो ये चाहता है कि उसका जो कैप्टन है वो उठे, वो उठकर सुने कि किस तरीके से लोग उसे आवाज़ दे रहे हैं, किस तरीके से लोग बेल्स बजा रहे हैं. ठीक है. वो चाहता है कि उसका कैप्टन उठे और देखे कि लोग कैसे उसके लिए फ्लैग्स को क्या कर रहे हैं, फहरा रहे हैं. ठीक. So the speaker wants the captain to hear the bells and the bugle and to see the flag which is flung for him. वो चाहता है कि उसका कैप्टन उठे, बुगल की आवाज़ सुने, उसका कैप्टन उठे, बेल्स की आवाज़ सुने और वो देखे कि लोग कैसे उसके लिए झंडे को फहरा रहे हैं. Next question. In what 2 ways is the voyage closed and done? Now, voyage closed and done ये यहाँ पे क्यों लिखा गया है? सो बेसिकली दिस phrase is in the 3rd stanza.
Okay, let me just read you. My captain does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship is anchored safe and sound. Its voyage closed and done. तो ये जो जर्नी है इसको क्लोज्ड एंड डन क्यों कहा गया है? फर्स्टली द शिप हैज़ अराइव्ड सेफ एंड साउंड ऑन द पोर्ट. ठीक है, क्लोज एंड डन का मतलब यहाँ पे दो चीज़ों के लिए यूज़ हुआ है. पहली तो इसलिए क्लोज एंड डन लिखा गया है क्योंकि वो जो शिप है वो अपने शोर पे, अपने पोर्ट पे सक्सेसफुली आ गया है, सेफली एंकर्ड कर गया है बिना किसी प्रॉब्लम के. सेकेंडली इट्स कैप्टन इज़ डेड. इन दिस वे द वॉयज इज़ क्लोज्ड एंड डन. सो दो तरीके से जर्नी पूरी हो गई. एक तो जर्नी पूरी हो गई इस वजह से, और दूसरी उस कैप्टन की जर्नी जो है वो अब पूरी हो गई है. नाउ ही इज़ डेड. ठीक है, तो डन यहाँ पे इसलिए लिखा गया है बिकॉज हिज कैप्टन इज नो मोर. Last question number 4th. While everyone is celebrating on the shore, what is this speaker doing? While everybody is celebrating, what is the speaker doing? While everyone is celebrating on the shore, the poet is mournful on the deck where the dead body of the captain is lain. जब सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उनका वापस आना, जब सारे लोग शोर पे खड़े होकर सेलिब्रेट कर रहे थे विक्ट्री को, बेल्स बजा रहे थे, फ्लैग्स फहरा रहे थे, आवाज़ें दे रहे थे, बुगल बजा रहे थे, तब ये जो स्पीकर है ये बिल्कुल भी खुश नहीं था. ही वॉज लैमेंटिंग, ही वॉज मोर्नफुल. वो शोक मना रहा था अपने कैप्टन की डेड बॉडी का. Question number 5th. What do the bleeding drops of red mean figuratively and literally? The bleeding drop of red means the captain is dead, his body is lain on the deck and the blood is oozing from its body. It's very simple. Bleeding drops of red का मतलब है यहाँ पे कि जो उनका कैप्टन है वो अब ख़त्म हो चुका है, उसकी जो बॉडी है वो डेक पर पड़ी हुई है और जो ब्लड है उसकी बॉडी से बह रहा है. ठीक है, जो ब्लड के ड्रॉप्स हैं दैट इज ओजिंग फ्रॉम हिज बॉडी. नेक्स्ट, हाउ डज द स्पीकर रिएक्ट टू द होल सिचुएशन? अब जो हमारा स्पीकर है जो ये सारी बातों को कह रहा है वो कैसे रिएक्ट करता है पूरी की पूरी सिचुएशन में? द स्पीकर इज़ वेरी सैड ऑन द डेथ ऑफ हिज कैप्टन, but he asked his countrymen to enjoy and celebrate the victory while he himself is lamenting over the death of his captain. Now जो हमारा स्पीकर है वो फर्स्ट स्टैंजा में आप देखते हो कि बहुत खुश है क्योंकि उसकी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली. वो लोगों को देख रहा है और वो चाहता भी है कि उसके जो कंट्रीमैन है वो सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें. सेकेंड स्टैंजा में वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसके जो कैप्टन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो अब नहीं हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रेफर्स हिज कैप्टन एज हिज फादर. वो अपने कैप्टन को अपना फादर भी कहता है. ठीक है, वो लोगों से ये कहता है कि हाँ ठीक है आप इन्जॉय करो. ही वॉन्ट्स एवरीबडी टू इन्जॉय, ही वॉन्ट्स ऑल द कंट्रीमैन टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, बट ही हिमसेल्फ इज़ नॉट सेलिब्रेटिंग, ही हिमसेल्फ इज़ नॉट इन्जॉइंग बिकॉज ही इज़ बिजी इन लैमेंटिंग, ही इज़ बिजी इन feeling sad over the death of his captain. Question number 7. What does the way the wait a minute. What? Question number 7. What does the way the speaker addresses the captain in the poem reveal about his feeling towards the captain? अब यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से वो अपने कैप्टन को ट्रीट कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने कैप्टन को एड्रेस करता है फादर कह के, कैप्टन कह के, रिस्पेक्ट दे के, वो यहाँ पे क्या शो करती है कि उसके अंदर कैसी फीलिंग्स होगी उसके कैप्टन के लिए. द वे द स्पीकर एड्रेसेस टू हिज कैप्टन शोज दैट ही हैज़ अ ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट इन हिज हार्ट फॉर हिज कैप्टन. अगर उसके दिल में अपने कैप्टन के लिए इतनी ह्यूज रिस्पेक्ट और लव ना होता तो वो इतने बड़े ओकेजन पे, इतने बड़े टाइम पे, जबकि पूरे कंट्री मैन इन्जॉय कर रहे हैं, पूरी कंट्री को खुश होना चाहिए दैट दे गॉट विक्ट्री, स्टिल वाई ही सैड? क्योंकि उसके दिल में जो उसका कैप्टन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जगह है, बहुत रिस्पेक्ट है, वो बहुत प्यार करता है अपने कैप्टन से, इसलिए इतनी बड़ी खुशी के बाद भी वो खुश नहीं है, वो दुखी है अपने कैप्टन के लिए. ओके, सो हियर इज़ द लास्ट क्वेश्चन. The poem ends with the refrain, fallen, cold and dead. How does this refrain contribute to the mood of the poem? Okay, so fallen, cold and dead.
in the poem this phrase have been used thrice. इस फ्रेज को 3 बार यूज़ किया गया है, ठीक है. ये जो फ्रेज है फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये पोएम का मूड किस तरीके से चेंज करती है और क्या कंट्रीब्यूशन है इस फ्रेज का पोएम में. द refrain fallen and dead changes the happy mood of the poem into the sorrow one. The speaker becomes sad at the end of the poem because his captain is dead. ठीक है. So जैसे जैसे first paragraph है, in the first paragraph, in the first stanza, the poet is very happy. When we read this line, where on my deck my captain lies fallen cold and dead, suddenly जो poem का mood है वो बिल्कुल sorrowful हो जाता है, बिल्कुल दुखी हो जाता है. Similarly, second stanza की जो last lines हैं, it is some dream that on the deck you have fallen cold and dead. ओके, अगेन पोएम का जो पूरा मूड है वो चेंज ही कर दिया है कि ऐसा लग रहा है ये कोई एक सपने जैसा है कि आपकी बॉडी कोल्ड और मतलब डेड पड़ी हुई है डेक पे. और इसी तरह सेम लास्ट स्टैंजा में भी है, वॉक द डेक ऑफ माई कैप्टन लाइज फॉलन कोल्ड एंड डेड. सो बेसिकली फॉलन कोल्ड एंड डेड क्या कंट्रीब्यूशन है इसका पोएम में, it changes the mood, it changes the happy mood, the glorious mood, the victorious mood into a very sorrow one, into a very grievous mood, grief में change कर देता है. So students, this was it about the question answer. We are done with this topic, we are done with this poem. Clearly, if you still have any questions, feel free to ask me in the comment section. And yes, in the next video we will start a fresh new chapter, and till then, take care and stay safe. रख लूँ मैं तेनू किते हाइड करके, दुनिया की नज़रों से साइड करके. रख लूँ मैं तेनू किते हाइड करके, दुनिया की नज़रों से साइड करके.